गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं अनुरेखा गुप्ता, योर साइंस टीचर. We have started the chapter first, crop production and management. And in this chapter right now we have done preparation of soil, agriculture practices. We have done first point, preparation of soil, sowing, adding manure to fertilizer, that we have discussed. Now we are going to discuss about the irrigation. Do you know the meaning of irrigation? Irrigation means watering of plants. Irrigation, what does the irrigation mean? Irrigation means watering of plants. So there are two types of irrigations. मतलब there are two methods of irrigation. Irrigation के दो methods हैं और irrigation होता है कि पौधे जो क्रॉप जो हम लगाते हैं उसको क्या करना, उसको वाटरिंग करना, उसकी पानी देना. उसको बीज तो हमने बो दिए, खाद हमने डाल दी, वी एडेड द मैन्यूर एंड द फर्टिलाइजर्स. इफ़ वी डू नॉट इरीगेट द प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स को इरीगेट नहीं करेंगे, उनको पानी नहीं देंगे, तो कैसे हमारी फसल, कैसे हमारी क्रॉप पैदा होगी? तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इरीगेशन. देयर आर टू मेथड्स ऑफ इरीगेशन. वन इज traditional method and another one is modern method. On my phone screen you can see the four names and pictures you can see here. These are the traditional method. Traditional means जो पुराने समय में, इन पुराने ज़माने में जिनका प्रयोग किया जाता था, that methods are known as the traditional method. In traditional method, first one is moat or pulley system, second one is chain pump, third one is Dakley, and fourth one is rahat or lever system. आई थिंक आप लोगों ने ढेकली और रहट का नाम पहले सुना होगा. तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज मोट. मोट इज पुली सिस्टम. पुली सिस्टम, इन दिस सिस्टम व्हाट हैपन, अ वेल इज देयर. वेल मतलब कुआं होता है. कुएं के ऊपर जो है लकड़ी के स्टैंड से विद द वुडन स्टैंड अ पुली. पुली इज अ राउंड आयरन structure which is attached with the frame of triangular frame of wood. और उससे क्या है कि we can put the bucket or any pot in the water or in the well and pull the water, pull the bucket with the help of rope. और जो वो पुली है, वो जो पुली होती है वो उसको ऊपर खींचने में मदद करती है. See the picture. In the picture you can see a well, a triangular wooden stand, राउंड स्ट्रक्चर यू कैन सी. एक राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वो होती है पुली. और एक जो है रोप दिख रही है, रस्सी दिख रही है. तो उस रस्सी से जो है पॉट को बांध दिया जाता है, बकेट को बांध दिया जाता है और पानी को खींचा जाता है. दिस इज़ द पुली सिस्टम. पानी को खींच करके फिर जो है रास्ता बनाया जाता है जो आपके खेतों में जाता है और उससे जो है खेतों को पानी दिया जाता है. ठीक है, अंडरस्टैंड द मोड सिस्टम. नेक्स्ट इज द चेन सिस्टम. इन दिस सिस्टम two round structures which you can see in the picture on my phone screen. A round structure, this is a wheel is attached with the two ropes and the ropes are moved. ropes को घूमा जाता है और ropes के ऊपर क्या बांधा जाता है, buckets या छोटे छोटे pots बांधे जाते हैं. when the wheels move in a round and round, then the water from the water system came out and it will given to the fields. और इसको पानी को जो है वो खेतों में दिया जाता है. दिस इज अ चेन सिस्टम. नेक्स्ट वन इज ढेकली. ढेकली इज जस्ट look like moat. In this also a well is there and instead of pulley there is a long wooden stick or attached with the big block of wood or one bucket.
जो है वो इसके साथ अटैच होती है और उसको पानी को निकालने में वो मदद करती है. दिस इज़ द थर्ड ट्रेडिशनल मेथड डेकली. एंड द लास्ट वन इज़ रहट. रहट में क्या होता है, इसमें एनिमल्स का यूज़ किया जाता है. द एनिमल्स आर यूज टू डिग आउट द वाटर फ्रॉम द वेल. इसमें भी क्या होता है, एक बिग वुडन व्हील इज़ देयर and small pots to collect the water are attached with this wheel. When the ox or animal moves around the lever, so the water came out from the well and it is given to the field. And these are the four traditional methods. So there are four traditional methods. One is moat, another one is chain pump, third one is dekli, and fourth one is rahat. Now next is the modern method. You can see the pictures on the screen. There are 5 modern methods of watering irrigation of plants. One is basin, second one is surface, third one is furrow, fourth one is drip irrigation, and fifth one is sprinkler system. We will discuss about the sprinkler system. इन द स्प्रिंकलर सिस्टम, ये आप लोगों ने देखा होगा आजकल बड़े बड़े फील्ड्स जो होते हैं उनमें ये स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंड टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स. क्या होता है, इसको मैं पहले आपको हिंदी में समझाती हूँ कि इसमें जो है लंबी पाइप्स, आप इमेजिन करो लंबी पाइप्स जो हैं वो फील्ड में रखी गई हैं. फिर उसके ऊपर एक थोड़े थोड़े इंटरवल्स के ऊपर परपेंडिकुलर खड़ी पाइप्स लगा दी जाती हैं 90 डिग्री के 90 डिग्री के कोण के ऊपर. उन जो पाइप जो 90 डिग्री के कोण के ऊपर लगाई जाती हैं उसके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगा दिए जाते हैं. तो जो मेन पाइप नीचे है उसमें पानी जब चलता है तो वो सक करता है पानी को, जो 90 डिग्री के एंगल पर जो हमने पाइप लगाई है नोज़ल से सक होता है और वो रोटेट करता है. रोटेट यानी कि घूमता है. घूमने से क्या होता है कि जो पानी है वो पूरे के पूरे प्रेशर से पूरे फील्ड को दिया जाता है. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is a raining. तो हमें भी कभी कई बार हम देख लेते हैं किसी खेत में ये स्प्रिंकलर्स चल रहे होते हैं या किसी गार्डन में स्प्रिंकलर्स चल रहे होते हैं, तो हमें भी उसमें मस्ती करने का कितना कितना अच्छा लगता है ना, नहाना कितना अच्छा लगता है. ऐसे लगता है कि बारिश हो रही है तो हम उसमें जो है नहाते हैं. तो जस्ट लाइक दैट कि ऐसे लगता है कि रेनिंग हो रही है, इट्स रेनिंग. तो पूरी की पूरी जो फील्ड है, पूरे का पूरा फील्ड है, उसमें जितनी भी क्रॉप है उसके ऊपर इसको स्प्रिंकलर किया जाता है. तो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्प्रिंकलर मैथड. नेक्स्ट मैथड है स्प्रिंकलर मैथड ऑफ इरिगेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस. अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी एडवांटेजेस क्या है. पहला है दिस सिस्टम इज़ यूजफुल फॉर द अनइवन लैंड वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. व्हाट डू यू मीन बाय द अनइवन लैंड. अनइवन लैंड क्या होती है, जो उबड़ खाबड़ धरती होती है, जो एकदम से प्लेन लैंड नहीं है, एकदम से स्मूथ लैंड नहीं है, उसके ऊपर इस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है. और वहाँ पे पानी भी सफिशेंट अमाउंट में पानी नहीं होता. सेकेंड इसका यूज़ क्या है, इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल जस्ट लाइक इन आर राजस्थान, इन आर स्टेट. यहाँ पर सॉइल क्या है, सैंडी है. सैंडी सॉइल में क्या है, वाटर जो है वो एकदम से ठहरता नहीं है, पानी अब्जॉर्ब कर लेती है. तो इसलिए जो है स्प्रिंकलर मेथड यहाँ पर यूज़ में किया जाता है इरिगेशन के तौर पर. ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट इज स्प्रिंकलर मेथड एंड व्हाट इज द यूज़ ऑफ द स्प्रिंकलर मेथड. ओके, नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट जो है वो इरिगेशन का मेथड जो है, मॉडर्न मेथड जो है वो हम करेंगे ड्रिप इरिगेशन. ठीक है, व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, इन द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देयर इज ए नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स विथ स्मॉल होल्स इन द फील्ड. When water flows through the narrow pipes,
it falls drop by drop at the position of roots of the plants. This water is absorbed by the soil and utilized by the plants. तो मैं इसको समझाती हूँ कि ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि छोटी छोटी पतली, जैसे इसमें स्प्रिंकलर में मोटी पाइप्स होती हैं, पर ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, छोटी नैरो पाइप्स होती हैं और उनमें छोटे 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 होल कर दिए जाते हैं और इन पाइप्स का पूरे के पूरे जाल को पूरे खेत में जो है वो लगा दिया जाता है। पर इनको सेट कहाँ किया जाता है, इन द रूट्स ऑफ द प्लांट कि उनकी जो प्लांट की रूट्स होती हैं उसके पास इनको सेट किया जाता है, ताकि जब पाइप हम ऑन करेंगे पानी को तो वो पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप उन रूट्स में गिरता रहेगा और जो रूट्स हैं प्लांट की वो मॉइस्ट रहती हैं, वो सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो पानी को ऑब्जॉर्व कर ले और विच इज़ यूज बाय द प्लांट। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मैथड ऑफ इरिगेशन। मोस्टली आजकल जिन लोगों ने रूफ गार्डन बनाए हुए हैं, जब घर में छोटे छोटे किचन गार्डन्स बनाते हैं, जो रूफ गार्डन मतलब अपनी छत के ऊपर ही गार्डन सब्जियां उगा लेते हैं और खेती कर लेते हैं, तो वो लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। इसका यूज़ क्या है, ड्रिप सिस्टम इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट, आई हैव टोल्ड यू। तो इसका सिस्टम क्या है, इसका यूज़ क्या है, इट प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। एक तो अगर हम एकदम से पानी दे देते हैं पौधे को, कई बार पानी इतना ज़्यादा दे देते हैं कि प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, फसल जो है वो सड़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये धीरे 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 जाता है रूट्स में, तो जिसकी वजह से प्लांट जो है सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। इट मिनिमाइजेज द यूज़ ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर। ड्रिप इरिगेशन जो है इट स्टॉप्स द वेस्टेज ऑफ वाटर, मिनिमाइजेज मतलब स्टॉप्स द वेस्टेज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो पानी की वेस्टेज है उसको स्टॉप करता है ड्रिप इरिगेशन। Understand what is drip irrigation? We had discussed modern method, one is sprinkler and another one is drip irrigation and their uses. So these are the two types of method with which we irrigate our plant. Irrigate matlab water the plant. One is traditional method and another one is the modern method. Next fifth जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है दैट इज वीडिंग। वीडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय वीडिंग? वीड, सबसे पहले वीडिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले वी नो व्हाट इज वीड। वीड आपने कई बार देखा होगा कि खेतों में जब अपन क्रॉप ग्रो करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, तो उसके साथ कुछ जो है प्लांट्स और उग के आ जाते हैं अपने आप, जो जिनके सीड्स हम उसमें नहीं डालते पर फिर भी वो उग जाते हैं। तो दीज अनवांटेड प्लांट्स और वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद अ कल्टीवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। तो ये अनवांटेड प्लांट्स है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमारी जो कल्टीवेटेड क्रॉप है जिसको हमने उगाया है उसके साथ उग जाते हैं और दैट आर कॉल्ड वीड्स, इनको कहते हैं वीड्स। नाउ द मेथड ऑफ रिमूविंग, the process of removing weeds, these unwanted plants from the crop is called weeding. तो question may be asked in the exam, what is weeding? तो weeding क्या होता है कि जो प्लांट के साथ, पौधे के साथ अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीडिंग। तो weeding is necessary because weeds compete with the crop plants for water, nutrients, light and space and hence affect the growth of the crop. इसको हम समझेंगे कि वीडिंग क्यों ज़रूरत है, क्यों इन अनवांटेड प्लांट्स को निकाला जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो वीड्स हैं, ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो हमने क्रॉप उगाई है, हमने जो प्लांट्स उगाए हैं, उसके हिस्से का पानी ले लेते हैं, उसके हिस्से के न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, सनलाइट ले लेते हैं और उसकी स्पेस ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ओरिजिनल क्रॉप है जिसको उगाया गया है असली में, उसको जो है प्रॉपर ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उसका यील्ड जो है, उसका उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। थर्ड है द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जो बच्चे जिनके खेत हैं, जब वो खेती बाड़ी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं,
तो वो ये चीज़ जानते होंगे कि वीड्स जो हैं ये अनवांटेड प्लांट्स होते क्या हैं और इनको कब रिमूव करना चाहिए। इनको रिमूव करने का टाइम तब होता है कि जब अपनी फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसके साथ ये भी बड़े हो जाते हैं। बिफोर द फ्लावर्स, बिफोर दे प्रोड्यूस द फ्लावर्स और सीड्स, उससे पहले ही इनको रिमूव कर देना ज़रूरी होता है। अगर इनमें फ्लावर्स लग गए या इन्होंने सीड्स प्रोड्यूस कर लिए तो आप जितना भी इसको रिमूव करने की कोशिश करोगे ये रिमूव नहीं होंगे। आप जितना रिमूव करोगे इसके सीड्स फिर उग जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे ज़मीन में, तो ये फिर जो है हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाएंगे। तो दिस इज़ वीडिंग। अंडरस्टैंड what is weeding? Weeding is the process of removing weeds, unwanted plants from a crop field is called weeding. Next है method of removing weeding, कि इसको कैसे वीड को किन किन चीज़ों से इनको जो है वो रिमूव किया जाता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाथ से। छोटे फील्ड हैं, छोटी जगह है, तो वहाँ पर तो वीड को कैसे रिमूव किया जाता है? बाय पुलिंग विद देम विद हैंड्स। हैंड से, हाथों से भी कर देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। फिर एक मेथड होता है सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स, दिस इज़ अ मशीन विच इज़ अटैच्ड विद द ट्रैक्टर्स, और इसको अटैच किया जाता है ट्रैक्टर्स के साथ और खेत में घुमाया जाता है। इसमें क्या होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर द स्ट्रक्चर, द डायग्राम ऑफ द सीड ड्रिल, कि इसमें ये सारा लोहे का है, आयरन का बना होता है, और ये जो राउंड नीचे ज़मीन में धसे हुए आपको दिख रहे हैं ये शार्प एंडेड मेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं जो जब खेत में से चलती हैं तो ये वीड्स को निकालती जाती हैं। तो अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट द वीड्स। और नेक्स्ट है खुरपा, ट्रॉल, जो हम नॉर्मली देखते हैं, दैट इज़ ट्रॉवल और खुरपा और खुरपी, वट एवर यू वॉन्ट टू नेम इट। तो इससे भी जो है वीड्स को निकाला जाता है। इंग्लिश में कहते हैं, इन इंग्लिश इट्स नोन एज द ट्रॉवल एंड इन हिंदी इट्स नोन एज खुरपा और खुरपी। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स with which we remove the weeds. One is khurpi, another is seed drill, and by hand picking, and another method by which we remove the weed is spraying. स्प्रे किया जाता है। स्प्रे क्या किसका किया जाता है? द स्प्रे ऑफ वीडीसाइड। वीडीसाइड्स आर द मेडिसिन्स which contain the content which kills the weeds. So the poisonous chemicals which are used to weeds in the field are weedicides. These are poisonous. इनमें जहर होता है। These are the poisonous chemicals. Chemicals होते हैं, रसायन होते हैं which are used to kill weeds in the field are called weedicide. You can see a man, a farmer is spraying in the field weedicides. He is spraying weedicide. और एग्जाम्पल है जो वीडीसाइड, जो मेन वीडीसाइड यूज़ किया जाता है वो है 2,4-D। ये भी आपको वन वर्ड में पूछा जा सकता है। नेम द वीडीसाइड्स और द केमिकल, पॉइजनस केमिकल विच इज़ यूज टू किल द वीड्स इन द फील्ड, एंड दैट इज़ 2,4-D. What is that? That is 2,4-D. तो so we did वीडिंग। वीडिंग कैसे करते हैं? बाय हैंड प्लकिंग, बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवल और खुरपी, देन सीड ड्रिल, और नेक्स्ट वन इज स्प्रेइंग। नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सिक्स्थ वन इज हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप अपॉन इट्स मैचुरेशन। मैचुरेशन मतलब जब वो मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, पक के तैयार हो जाती है, उसकी कटिंग, उसको गैदर करना, उसको इकट्ठा करना, दैट इज़ नोन एज द मैचुरेशन। जनरली अ क्रॉप गेट्स रेडी इन 3-4 months फॉर हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या हुई? अगर आपको हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है, तो आप उसकी परिभाषा क्या लिखोगे? द प्रोसेस of cutting and gathering of crop upon its maturation is known as the harvesting, and the harvesting is done after 3 or 4 months when our crop gets ready to cut. It can be done manually by hand with sickle. You can see the diagram of the sickle, or by machines. Machines are harvesters. These are the big machines which are used to cut the crop.
इसमें क्या होता है कि एक तरफ से क्रॉप को कट किया जाता है और दूसरी तरफ से इसके ग्रेन्स जो हैं, इसके सीड्स जो हैं, वो जो है उनको सैक्स में जूट सैक्स होते हैं, जो बोरे होते हैं, उनमें इकट्ठा कर लिया जाता है। तो हमारी 6th एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुई हार्वेस्टिंग, विच इज़ डन विद सिकल मैनुअली और विद मशीन, दैट इज़ हार्वेस्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतने सारे प्रोसेस किए, इतने सारे प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करी, फिर सोइंग करी, फिर हमने खेत में वी ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, फिर इरीगेशन करी, देन वीडिंग करी। वीडिंग के बाद after the weeding, when the crop gets ready after 3 or 4 months or our hard work, so the process of harvesting is done. If the process of harvesting is not done, अगर हम हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो क्रॉप क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, तो हमारी सारी की सारी मेहनत क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, द नेक्स्ट है आफ्टर हार्वेस्टिंग the stubble left in the field are burnt by the farmers, which causes air pollution and makes land barren. अब देखो क्या होता है कि जब हार्वेस्टिंग होगी, जब क्रॉप की कटिंग हो गई, कटिंग होने के बाद क्रॉप के जो नीचे रूट्स रह जाती हैं, स्टबल जिसे कहते हैं, स्टबल लेफ्ट इन द फील्ड, जो उसके रिमेन्स, कुछ चीज़ें उसके प्लांट्स के रह जाते हैं फील्ड के अंदर, उसको क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। ठीक है, जलाने से क्या होता है कि वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है, और जिससे कई बार क्या होता है कि हमारी ज़मीन जो है वो लैंड बैरन मतलब बंजर हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, इससे हमें ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली में जो है अभी अक्टूबर का ये जैसे सीज़न, ये अक्टूबर मंथ आएगा, तो इसमें क्या होता है कि एयर पोल्यूशन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अक्टूबर नवंबर में, और उधर फरवरी मार्च में जो है द एयर पोल्यूशन लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है। तो वो क्या होता है कि जो आसपास के हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं, द फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी क्रॉप को काटने के बाद, उनकी हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या है कि उसका जो स्टेबल है, उसके जो रिमेन्स हैं, उसको बर्न कर देते हैं, उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है और कई बार क्या होता है, ज़मीन बंजर भी हो जाती है। उसके बाद आप जैसे हार्वेस्टिंग हो गई, क्रॉप पक गई, अब पकने का बाद मतलब जो हमें क्रॉप मिली, तो दैट इज़ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर द फार्मर्स एंड अस। वो हमारे लिए बहुत हैप्पी मोमेंट है कि हमारे इतने महीनों की जो मेहनत है वो काम लाई। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए वी सेलिब्रेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ मकर संक्रांति, बैसाखी, पोंगल, लोहरी एंड बिहू। These are the harvest festivals which are celebrated in different states in different ways. Makar Sankranti we celebrate in Rajasthan. ठीक है, बैसाखी, this is a harvest festival of Punjab which is celebrated in April. पोंगल ये तमिलनाडु का है, साउथ का है। लोहरी इट इज़ आल्सो सेलिब्रेटेड इन पंजाब। बिहू ये असम का है, ईस्ट का ये है। दीज आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो बच्चों आपको ये भी सब याद करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें कि हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से होते हैं और कौन से स्टेट में कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद जो है नेक्स्ट हमारा आता है थ्रेशिंग। ओके, थ्रेशिंग क्या होता है? बीटिंग ऑफ सीरियल प्लांट्स टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम शाफ। मीन्स कि जब मान लो हमारे खेतों में क्रॉप कौन सी थी, राइस की थी, चावल की क्रॉप थी, वो पक गई। पकने के बाद क्या होता है, चावल की क्रॉप कभी आपने देखी है, लंबे से प्लांट्स होते हैं और उसके ऊपर जो हैं, जैसे बाजरे के होते हैं ऊपर उसके लगे होता है बाजरा सीड्स होते हैं, तो क्या किया जाता है, उसको अब उस प्लांट से सेपरेट किया जाता है, शाफ उसको बोलते हैं, उससे सेपरेट किया जाता है। उसको सेपरेट करने के लिए जैसे ये कौन सी क्रॉप्स को सेपरेट किया जाता है, सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं उनको, दैट इज़ मेज, पैडी इज़ राइस, वीट इज़ गेहूँ, बारले इज़ बाजरा।
तो ये क्रॉप्स हैं, these crops are separated from the grains, from the chaff. Okay, threshing can be done manually with hands or by threshers or by combines. To combined harvester and threshers, these are the machine. So there are two methods of threshing. One is manually, means it is done with the hands, and another one is threshers or by the combines or the threshers. This is also the very important agriculture practice after the harvesting. After the threshing, there comes the winnowing means farmers having small agriculture land do the separation of grains from chaff manually by hand or by winnowing. So the process of separating the crop, the grains from the chaff by hand manually by the small farmers is known as the winnowing. In this grain, mixture is thrown in air so that wind blows the lighter chaff while heavier grains fall down. घरों में भी क्या करते हैं हम, कई बार जैसे गेहूं लेके आते हैं, गेहूं इज वीट लेके आते हैं, उसको कैसे साफ़ किया जाता है, उसको एक गेहूं को छानने वाला एक वो होता है जिसे कहते हैं ट्रे कह सकते हैं हम, उसमें हम उसको डाल करके तो हम ऊपर से उसको हिलाते हुए नीचे गिराते हैं, तो क्या होता है जो उसका लाइटर पार्ट है, जो हल्के उसमें शैफ होते हैं, हस्क होता है, जो उसमें कचरा होता है, वो उड़ करके साइड पे हो जाता है और हमारे जो साफ ग्रेन्स हैं, दाने जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं. दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज द विनोइंग. विनोइंग मीन्स separating of unwanted things, separating of unwanted chaff or stones from the grains is known as the winnowing. It is done with the help of hands by the small farmers. Okay, next here comes the, after winnowing there comes the storage is very important. When all these practices we done, the last step came the storage, which is the very important step. स्टोरेज में क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. स्टोरेज इज प्रॉपर मैनर मेक्स देम अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर इन एवरी प्लेस. स्टोरेज मतलब उनका स्टोर करके रखना. अगर हम जो क्रॉप है हमारी तैयार हो जाती है उसको स्टोर नहीं करेंगे तो हमारे को सारा साल जो है खाने के लिए नहीं मिलेगा. हमें डिस्ट्रीब्यूट हम क्या करेंगे, अर्निंग क्या करेंगे, हम कमाएंगे क्या, जो हमने इतनी मेहनत करी तो हमने किस लिए करी, एक तो अपने लिए करी कि हम सारा साल जो है हमें खाने के लिए मिले, दूसरा हम कुछ पैसे कमा लें. तो स्टोरेज इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टास्क डन आफ्टर द हार्वेस्टिंग. वाइल स्टोरिंग ग्रेन्स क्या करते हैं, स्टोरेज एरिया शुड बी ड्राई. जब भी हम स्टोरेज करेंगे किसी ग्रेन का, किसी भी क्रॉप का, द स्टोरेज एरिया शुड बी ड्राई, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर टू अवॉइड माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ताकि वहाँ पर कीड़े ना लग जाएं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीड़े ना उसको ख़राब कर दें. शुड बी फ्री फ्रॉम रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स. घरों में भी हम दाल या गेहूँ या चावल अगर किसी गीले बॉक्स में डाल करके स्टोर करके रखते हैं तो थोड़े दिनों बाद हम क्या देखते हैं उसमें काले काले से छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, इल्लियाँ लग जाती हैं. तो वो दैट आर फ्री, दैट आर रोडेंट्स और इंसेक्ट्स. नो ओपन स्पेसिस और नो ओपन विंडो फॉर बर्ड्स. अगर हम खुले में ग्रेन्स को छोड़ दें तो क्या होगा, पक्षी पिजन्स जो हैं, कबूतर है, चिड़िया है, कौवे हैं, तोते हैं, वो आकर के जो है उसको खा जाएंगे तो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा देंगे. अब है ट्रीटमेंट फॉर स्टोरेज. व्हाट आर द ट्रीटमेंट वी डू फॉर द स्टोरेज. फर्स्ट है बिफोर स्टोरिंग. स्टोर करने से पहले सीड शुड बी सन ड्राइड. सबसे पहले उनको किया जाता है बिल्कुल सुखाया जाता है. सीड शुड बी सन ड्राइड. ड्यूरिंग स्टोरेज दे शुड बी मिक्सड विद ड्राइड नीम लीव्स, गार्लिक और टर्मेरिक पीसेस टू अवॉइड इन्फेक्शन एंड पेस्ट. तो क्या किया जाता है कि उनमें ड्राइड नीम लीव्स, नीम के पत्ते डाले जाते हैं सूखे, गार्लिक जाने की लहसुन, और टर्मेरिक जाने की हल्दी के पीसेस डाले जाते हैं. स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स कैन आल्सो बी गिवन एट द टाइम ऑफ द स्टोरिंग ग्रेन्स.
और जब अपन स्टोर करते हैं उसके लिए अगर हमें डर है कि हमारी क्रॉप को जो है रोडेंट्स ना लग जाए, कीड़े ना लग जाए, ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमारी सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो कंप्लीट हुई। तो इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वी डिड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, weeding, harvesting, threshing, winnowing and storage। तो स्टोर यहाँ पर जो है ये हमारा जो है ये ख़त्म हुआ। उसके बाद स्टोरिंग के मेथड्स भी हैं, देयर आर मेथड्स ऑफ स्टोरिंग। तो स्टोरिंग जो है इन अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन स्टोर्ड एट होम इन यूट बैग्स एंड मेटालिक कंटेनर्स इन द स्मॉल क्वांटिटी। अगर थोड़ी देर के मतलब हमें साल भर के लिए अपने क्रॉप को स्टोर करके रखना है तो दीज आर स्टोर्ड इन द जूट बैग्स जो बोरे होते हैं उनमें, एंड द मेटालिक कंटेनर्स, छोटे छोटे राउंड जो है हम मेटालिक कंटेनर्स में आयरन के बने हुए कंटेनर्स लेते हैं उनमें स्टोर करते हैं। देन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर करना है तो इन दिस वी use the silos and granaries. We use the silos and the granaries. What are the silos? Silos are the tall cylindrical storage structures with opening, okay, and can store different stock of food grains at different levels. So these are the method of storing. Okay, storing in small scales we use the jute bags and metallic bins, and in large scale we use the silos and granaries. Okay, now we will discuss about the granaries. What are the granaries? Granaries consist of gunny bags filled with fruit grains. gunny bags जो होते हैं इसके बोरे जो होते हैं उनमें डाला जाता है। Staked in a large godown or wooden platform away from walls with alleys. आपने बड़े बड़े पिक्चर्स में देखा होगा, स्टोरेज ग्रेनरीज देखी होंगी, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं गोदाम देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि वुडन प्लेटफॉर्म लगाए जाते हैं और उनके ऊपर जो है ये क्रॉप से सीड से फिल्ड गनी बैग्स को रखा जाता है। और ये क्या है, ये दीवारों को टच नहीं करते हैं। अगर दीवारों को टच करें तो साइड से कोई कीड़े आ जाएंगे, वो उसको ख़राब करेंगे। फिर फ्यूमिगेशन बिटवीन द स्टेक्स थ्रू एलिस, फ्यूमिगेशन की जाती है। फ्यूमिगेशन का मतलब क्या है कि धुआं छोड़ा जाता है ताकि अगर कोई कीड़ा हो या मॉइस्चर हो दैट कैन बी रिमूव। नेक्स्ट आते हैं कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं, पेरिशेबल फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड हियर। कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं कि हम जो है हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सारा साल थ्रू द ईयर वी कैन गेट द, इफ़ वी वांट टू गेट द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल देन दीज आर स्टोर्ड इन अ कोल्ड स्टोरेज। वेरी बिग रूम होता है और उसमें बड़े बड़े फ्रीज़र्स लगाए जाते हैं टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द रूम। तो in these we can kept our fruits and vegetables just like the refrigerator we have in our home। जैसे हम अपने घर में रेफ्रिजरेटर्स फ्रिज रखते हैं तो उसमें क्या है, हम थोड़े दिनों के लिए सब्जी फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए उसमें रखते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो जाए। जो खाना सब्जी बच जाती है बनी हुई उसको रख देते हैं, दूध रख देते हैं तो वो एक दिन सही रहता है उसमें। तो जस्ट लाइक द कोल्ड स्टोरेज आर द बिग रेफ्रिजरेटर, यू कैन से अ वेरी बिग रेफ्रिजरेटर जिसमें बहुत अमाउंट में, बहुत क्वांटिटी में जो है हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो बच्चों आज का ये यहाँ पे है हमारा ये सब ख़त्म हुआ। वी हैव फिनिश्ड all the agriculture practices with detail. If anybody had any confusion, he or she can contact me, he or she can ask me question in the chat box on my personal number। ओके और द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो है ये ख़त्म हुआ और आपको अब क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द ऑल द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, देयर नेम, द मैथड, हाउ दे आर डन। तो ऑल इसको एक चार्ट में बनाएंगे, आप अपनी तरफ से बनाएंगे और मुझे सैटरडे तक बना करके भेजेंगे। तो
तो अब एवरी सैटरडे वी कैन चेक द होमवर्क ऑन एवरी सैटरडे, ठीक है। वीक में कभी भी होमवर्क चेक नहीं होगा, एवरी सैटरडे चेक होगा होमवर्क, और इसको याद भी करना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर आई विल टेक योर टेस्ट, ओके। इट मे बी ओरल, मैं ओरल लूँगी चाहे जूम पर मे बी इट विल बी रिटन, वट एवर आई विल टेल यू, ओके। तो इस अब यहाँ तक ये हो गया। बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।